All the pupil teachers of Chanakya College of Education, Bettiya. Today we shall start how to prepare a micro lesson plan for introduction skill. First of all, you shall fill up in the diary name of pupil teacher. Each of you will write his or her name. After that, downside of it, date is mentioned there. You shall fill up their date, and after it, class is mentioned here. For which class we are preparing, we shall mention it. In the second row, there is subject. In subject, we shall fill up English. Sub-subject, if there is prose, we shall write their prose. If there is poetry, we shall write their poetry or poem. Both of it you may write. Then topic, we shall not fill up it topic here. After it, duration of time 6 minutes. Teaching. After that, serial number, pupil teachers activities, students activities, teaching aids. These are 4 columns. In pupil teachers activities, we shall mention here, we shall start our lesson with a teaching aid that is hung on the blackboard. Showing the picture to the students, the teacher will ask the following questions. Number 1 question, what do you see in the picture? The student will reply, a boy is helping an old man in walking. Number 2, why is he helping the old man? The answer will be on behalf of a student's activities. It is called sympathy. Number 3, what is the quality of kindness to others in trouble called? It is called sympathy. Number 4, what do you know more about sympathy? At these questions, the students may be silent. So you may write here problematic or silent. Actually, in this, after 3, 4 or 5 questions should be mentioned in introduction skill. And the last questions must be including problematic or silent in a student's activity. After that, a statement of aims. We shall write here, today we shall try to know more about sympathy by studying the poem Sympathy by Charles Mackay. Now after it we shall write here a topic sympathy. First of all, we shall not write topic sympathy in the format because it had to be told by students. Students will respond about the topic. So, first of all, we shall not write anything in the column of topic. ये इंट्रोडक्शन स्किल जो है, इसमें सबसे पहले नेम ऑफ प्यूपिल टीचर डायरी में भरना है. उसके बाद डेट, जिस डेट के लिए आप बना रहे हैं उसको भरना है. उसके बाद जिस
क्लास के लिए बना रहे हैं उसको भरना है। उसके बाद उसमें रहेगा, हिंदी में ही है डायरी, विषय में आपका इंग्लिश रहेगा, उप विषय सब सब्जेक्ट में कविता या पद्य रहेगा। उसके नीचे टॉपिक है, उसको अभी आपको इंट्रोडक्शन स्किल में उसको नहीं भरना है। उसके बाद पीरियड, किस पीरियड में 1 घंटी है वह भरना है, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपका 6 मिनट है। इसके नीचे जब हम चलेंगे तो यहाँ पर है 4 कॉलम है, 1 में सीरियल नंबर, 2 में प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटीज, 3 में जो है स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, और चौथा कॉलम टीचिंग एड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल हंग ए पिक्चर ऑफ ए बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन इन वॉकिंग। इसको जो है हम श्याम पथ पर के ऊपर टांग देंगे पिक्चर, जिसमें एक लड़का एक बूढ़े आदमी को टहलने में मदद कर रहा है। अब हम शोइंग द पिक्चर टू द स्टूडेंट, छात्रों को पिक्चर दिखाते हुए हम छात्रों से प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न होगा, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, तुम इस तस्वीर में क्या देखते हो। छात्रों का उत्तर आएगा, व्हाई इज हेल्पिंग एन ओल्ड मैन इन वॉकिंग। एक लड़का एक बूढ़े आदमी को टहलने में मदद कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, व्हाई इज ही हेल्पिंग द ओल्ड मैन, वह बूढ़े आदमी की मदद कर रहा है, बिकॉज ही इज काइंड, क्योंकि वह दयालु है। तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ काइंडनेस टू अदर्स इन ट्रबल कोर्ट। ये जो दयालुता का गुण है जो दूसरों के प्रति किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम यहाँ पर छात्रों का उत्तर होगा सहानुभूति कहते हैं। चौथा है, व्हाट डू यू नो मोर अबाउट सिंपैथी, तुम सिंपैथी के बारे में और क्या जानते हो के बारे में। तो यहाँ पर छात्र जो है मौन हो जाते हैं, या इसको आप समस्यात्मक भी लिख सकते हैं और मौन भी लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद उद्देश्य कथन रहना चाहिए। यह उद्देश्य कथन जो है केवल इंट्रोडक्शन स्किल नहीं रहेगा। इसमें होगा, टुडे वी शैल try to know more about sympathy by studying the poem Sympathy by Charles Mackay। बच्चों, आज हम लोग चार्ल्स मैके द्वारा रचित सिंपैथी कविता का अध्ययन के द्वारा सिंपैथी के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करेंगे। तो जब इसको हम लिख लिए उसके बाद बच्चों से हमने आवाज दिया सिंपैथी, तब हम आकर के टॉपिक में सिंपैथी लिख करके इनको हम उसको डालेंगे। आज हम इसके बाद जो है और चीज है, यह हुआ आपका टीचिंग। अब इसमें जो छूट गया, गड़बड़ी छूट गई, उसको हम फिर हमारा रीटीचिंग होगा, पुनः शिक्षण होगा। तो उस पुनः शिक्षण में जो है हमें क्या करना है कि इसमें कुछ गड़बड़ी जहाँ हुई है उसको फिर हम दुरुस्त करके इसी बात के लिए बनाएंगे। जैसे इसमें एक गड़बड़ी छोड़ा गया है, इसमें है ऊपर में जो है, ये ऊपर में जो है यहाँ पर होना चाहिए नेम ऑफ स्कूल। आप किस विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं, तो वहाँ पर विद्यालय का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। फिर इधर आइए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो है यहाँ पर 6 मिनट ठीक है, लेकिन उसके नीचे यहाँ पर टीचिंग है या रीटीचिंग है, इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो चूंकि आप पहली बार बना रहे हैं, इसीलिए वो टीचिंग होगा। इसमें जो गलती हुई, एरर आया, उसको सुधार करके आप फिर इसी पाठ का दूसरे लेसन फलान बनाएंगे, तो वह हो जाएगा रीटीचिंग। तो इस तरह से आपको दो बनाना होगा, एक टीचिंग और दूसरा रीटीचिंग। टीचिंग में जो गड़बड़ी हुई तो वह रीटीचिंग में जाकर आपको इम्प्रूव करना है। अगर टीचिंग आपकी ठीक है तो ठीक है,
लेकिन जहाँ भी कहीं कमी हुई उसको आप ले करके रीटीचिंग में उसको दुरुस्त करना है। जैसा कि इसमें हमने नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जान कर छोड़ दिया था। यहाँ पर आप टीचिंग कर रहे हैं तो रीटीचिंग कर रहे हैं, इसका जिक्र नहीं किया गया था। तो चूंकि यह पहली बार है तो यह टीचिंग है। इसके बाद जब आप दूसरा बनाएंगे तो वह रीटीचिंग में इसको दोनों गड़बड़ियों को आपको सुधार करना पड़ेगा। तब जाकर आपका इंटरेक्शन स्किल उद्देश्य कथन कहने के बाद ही आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ एम्स ओनली देन वी कैन राइट द नेम ऑफ द टॉपिक in the column of topic. So thank you very much. Okay.